وہ واپس آیا تو کارل اسے لنچ کے لیے لے گیا۔ اس نے مانچسٹر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا اور سائی اور شابیز کو بھی ساتھ لیا۔ یہ اس کی شاکرچی کی انتہا تھی۔ پھر کلب میں اس نے سب کو ناچ کر دکھایا اور انہیں دیوانہ وار ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہر مشہور ڈانسر کی نقل اتار رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے ڈی جے کو اشارہ کرتا اور ڈی جے اس کا اشارہ فوراً سمجھ کر مطلوبہ میوزک لگا دیتا۔ اس رات اس نے ہر بڑے ڈانسر کو خراج نقل پیش کیا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں موجود ہوتا تو ضرور کارل کو قتل کر کے قاتل بننا پسند کرتا۔ آلیہ نے ایسے کہکے لگائے جیسے اس سے زیادہ بے فکر انسان بھری دنیا میں اور کوئی نہیں۔ پھر وہ چاروں فلور پر کود پڑے اور کلب انتظامیہ نے جانا کہ انہیں یقیناً اگلے دن ڈانس فلور کی مرمت کروانی پڑے گی۔ پھر کارل انہیں سلایا کہ شارلٹ میں جو وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مانچسٹر کی سڑکوں پر ایسے گھماتا رہا کہ ان کی پہچان ایسی ہو گئی کہ روڈ سائڈ پر بنے ایک ریسٹورنٹ کے ملازم نے شیشے کے پار سڑک پر جھانک کر سوچا کہ ابھی ایک شارلٹ کار یہاں سے گزرے گی جس میں بیٹھے یونیورسٹی کے 4 مستنڈے چیختے چلاتے ہوئے گزریں گے۔ کار نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ کار کو بھی جہاز بنا کر اڑا سکتا ہے، اور آلیہ نے یہ ثابت کیا کہ ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی وہ پائلٹ کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ بس اخبار اور ٹی وی پر خبر نہیں آئی، باقی سب جان گئے کہ شارلٹ اور وہ 4 شور دل پر حاوی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ شور کا حصہ بن گیا۔ میلے تنہائی نہیں مٹاتے، پھر بھی وہ میلے سجا کر بیٹھ گیا۔ آلیان وہ ادھر ادھر یہاں وہاں ہو گیا۔ اس نے اپنا کمرہ سجایا اور اپنی بچت سے پرانا سامان نکال کر نیا سامان خرید لایا۔ ہال کے ایک ایک اسٹوڈنٹ نے اس کا کمرہ دیکھ کر کمال کہا۔ بیڈ کے سامنے کی دیوار پر اس نے شیطان کا پوسٹر لگایا جو پہلے نہیں لگایا تھا۔ کارل کا ننھے فرشتے سائی کو اس نے دوسری دیوار پر جگہ دی اور بیڈ کی سائڈ پر ماما مہر کا ایک نیا اسکیچ فریم کروا کر رکھا۔ مارگریٹ کے لیے وہ کوئی جگہ نہ ڈھونڈ سکا کہ وہ اسے کس حصے میں رکھے کہ اسے دیکھنے سے اسے خوشی ہوا کرے۔ وہ خود کو بدل رہا تھا، یہ اس کا ماننا تھا۔ ابتدا اس نے ان چیزوں سے کی اور وہ سب ایسے کرتا رہا جیسے کسی کو یہ سب دکھا رہا ہو۔ کس کو اس نے یہ بیٹھ کر طے نہ کیا، اور آلیان ہارٹ بریکر کے نام سے فریشرز میں مقبول ہو گیا۔ اس نے نئی آنے والی لڑکیوں کا جیسے دل ہی توڑ دیا، کیونکہ وہ اور ویرا جگہ جگہ ساتھ دیکھے جانے لگے، چہل قدمی کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے، لان میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے، لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہوئے، اور کبھی کبھی ویرا اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی تو کوئی نہ کوئی تصویر کھینچ کر سب کو ٹیگ کر دیتا اور پھر خوب گوسپ ہوتا۔ کبھی کوئی ایسی تصویر دی ٹیب مانچسٹر کا حصہ بن جاتی، ایسے ہی کیمپس نیوز کے عنوان سے، اور ایک اور جوڑی فریشرز میں بہت مقبول ہونے لگی۔ آلیان اور کارل کی ہفتے کی رات یا اتوار کے دن وہ کسی ایک یا زیادہ فریشر کو بھگتا لیتے۔ سائیکلنگ اور سوئمنگ میں جیت جیت کر انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ کرسمس کی چھٹیوں میں 10 دن تک اچھا کھانا کھا سکتے تھے۔ کسی بھی مقابلے کے دوران آلیان کا رویہ اتنا تنگ ہو جاتا جیسے جیتنا اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہو۔ وہ معمولی چیزوں اور اشاروں کو اہمیت دینے لگا۔ ہال میں کبھی کبھار کے ہونے والے خود ساختہ تھیٹر میں وہ ہنسا ہنسا کر سب کو لوٹ پوٹ کر دیتا۔ وہ کئی کام ایک ساتھ کرنے لگا تھا، جیسے اس کے پاس وقت کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ موجود ہو اور اپنی توانائیوں کو وہ کہیں بھی لگا دینا چاہتا ہو۔ پڑھائی کے علاوہ بھی اسے بہت کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ بولتا تو خود کو روکنا نہ چاہتا، خاموش ہوتا تو کبھی بول پڑے پر مائل نہ دکھتا، ہنستا تو اس کے کہکے کانوں کو پریشان کرتے، کہیں کھڑا ہوتا تو اپنے گرد مجمع اکٹھا کر لیتا، اور اس کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہو گیا کہ شاید وہ غصے میں آتا جاتا ہے۔ اس میں تکبر نہ جھلکا، لیکن وہ شان بے نیازی کا قائل نظر آنے لگا۔ اس پر نظر ٹھہرتی اور یہ سوچ پیدا کرتی، کیا یہ آلیان ہے یا نہیں؟
तो फिर आलियान कहाँ है? कई फ्रेशर्स को उसने कूड़ेदान में बंद किया और कितनों को स्टोर में लॉक किया कि गुमान गुजरने लगा कि वो संगदिल हो गया है। जब वो चुप होता तो ये गुमान भी गुजरता कि किसी के बारे में वो बेहिसी से सोच रहा है, किसी से लड़ रहा है, दलाइल दे रहा है, सबूत मांग रहा है। वो जंग की हालत में लगता, वो दो बदू लड़ता हुआ भी, ढेर सूरज शिकस्त खोरता भी। वो इख्तितामिया भी लगता और शुरुआत भी। कितनी ही अलामतें उसमें सर उठा कर खड़ी हो गई, जिसमें सबसे नुमाया मैं तकलीफ में हूँ। कितने ही इशारे उसकी सिमत उभर कर मालूम हो जाते, जिसमें सबसे नुमाया मुझसे दूर रहा जाए होता। वो एक ऐसे मैदान की सूरत इख्तियार कर गया जिसमें जा बजा कब्रें खोदी जा रही हों, कहीं किसी गुलिस्तान की आबियारी की तैयारी न की जा रही हो, ना उसकी इजाज़त ली और दी गई हो। एक दूर अफ्तादा इमारत की छत से रस्से से कूदने का टास्क उसने ऐसे जीत लिया कि कोई उसे हराने के बारे में सोच न सका। हाँ, ऐसे वक्तों में वो बेरहम लगने लगता, जैसे वो ऐसा गोरीला कमांडो है जो बगावत का इरादा बांध चुका हो। उसकी साइकिल सड़क पर ऐसे दौड़ने लगी जैसे वो किसी मिसाइल का हो जिसे हदफ की तरफ दाग गया हो। ऊंचाई से पानी में उल्टी छलांगे लगाते उसने अपने साथ बेदर्दी का रवैया अपना लिया कि कार्ल ने उससे रोक कर पूछा, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ना? बस करो। वो हंसकर कार्ल को परे करता और फिर से शुरू हो जाता। सब दोस्त बस उसे देखते ही जाते। साई ज़ेरे लब दुआएं दोहराता और ये दुआएं तब भी दोहराई गईं जब वो दो ऊंची पहाड़ियों पर तनी रस्सी पर चल रहा था। कार्ल पहले ही उस पार जा चुका था। उन्हें सबसे कम वक्त स्कोर करना था और जब वो रस्सी पर चढ़ा तो उसने हिफाजती बेल्ट खोल दिया और ऊंचाई से नीचे झांका। कार्ल के दिमाग में छनाका हुआ, अगर उसके दो पर होते तो वो उड़कर उसे मुंह में दबोच कर उस तरफ ले आता। वो रस्सी पर चल रहा था, अब कुछ नहीं हो सकता था। वो बहुत बुलंदी पर थे, उसकी मदद के इम्कान सिफर थे। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनसे अपना सांस बाहर रखना मुश्किल हो गया। ये पागल क्या करने जा रहा है? कार्ल का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर गुजरे। मेरा ख्याल था ये ठीक हो गया है, साई बड़बड़ाया। वहाँ 8 लड़कों का ग्रुप मौजूद था, 3 फ्रेशर्स और बाकी वो सीनियर्स। फ्रेशर्स ने उसे एक चैलेंज जाना कि वो उन्हें कह रहा है कि ऐसा करके दिखाओ तो तुम्हें जाने, और उनका कोई इरादा नहीं था उसके चैलेंज पर भड़कने का। वो खेलने आए थे, जान पर खेलने नहीं, और वो जान पर खेलने ही आया था। सबसे मामूली चीज़ आलियान को वो कहीं भी उठा कर फेंक देना चाहता था। कार्ल और साई को उसकी ज़हनी हालत के बारे में ठीक ठीक अंदाज़ा हो गया। वो उन्हें धोखा देता रहा था और वो उसके धोखे में आ गए थे। वो इतनी ऊंचाई पर अकेला खड़ा था, उसे नीचे जा गिरने का कोई डर नहीं था। उसने सबसे कम वक्त स्कोर किया था। कार्ल ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें गोली मारने का हौसला पैदा कर दूंगा, इसलिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे गुस्से की ज़्यादती की वजह से झंझोड़ रहा था। ठीक है, मार दो गोली, उसने संजीदगी से कहा और झांक कर नीचे देखा। इतना ऊंचा आकर भी वो कहीं बहुत नीचे गिरा हुआ था। कार्ल ने उसके जबड़े पर पूरी कुव्वत से घुंसा मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो भागकर रस्सी पर चढ़ गया और हिफाजती बेल्ट खोल दी। अब देखो मुझे और ये जानो कि जान कैसे निकलती है। आलियान ने अपने लब भींच लिए और उसे अफसोस हुआ। कार्ल बेदर्दी से रस्सी पर चल रहा था जैसे उसे भी अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन आलियान को उसकी परवाह थी। वो महसूस कर रहा था कि पहाड़ उसके पैरों तले से खिसक रहा था। फ्रेशर्स खड़े उन दोनों की शक्लें देख रहे थे। साई फिर से ज़ेरे लब दुआएं पढ़ने लगा था और आलियान कार्ल से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। हाँ, ये ठीक है, जान उस वक्त नहीं निकलती जब अपनी जान निकलती है। जान उस वक्त निकलती है जब अपने किसी जान से प्यारे की जान निकलती है। और उसने ये जाना कि हम अपने प्यारों की जानों के हकदार हैं, अपनी नहीं। उसने बेबसी से सर उठाकर आसमान की तरफ देखा।
इतना कुछ जान लेने पर भी वो जान लेने वालों जैसा क्यों नहीं हो रहा? और ये कि जिंदगी के सभी उजाले शब गुज़ीदा कैसे हो गए और इर्तिकाज़ के सन्नाटों ने आयशा नियाज़ी के कुर्ब आमेज़ जोगे के धागे से बुन लिए। शराब मुसलसल दास्ताने हयात में किस रुख से दाखिल होकर पनाह गज़ी हवा और कतरे शबनम बनो खारमी रक़्सम होने पर राज़ी कैसे हो गए। आलियान और वीरा की जो तस्वीरें इधर उधर घूमती थीं वो अमरा की नज़रों से भी गुजर ही जाती थी। शीज़ा तो खास से वो तस्वीरें भेजती थी। वो इन तस्वीरों को दुख से देखती, ना गुस्से और हसरत से। वो आलियान और वीरा की तस्वीरें होती और वो दोनों ही उसे प्यारे थे। हाँ, कभी कभी उन तस्वीरों को देखते उसे सांस लेने में मसला होता और एक बार उसने महसूस किया कि जिसे हम सारे का सारा अपना समझते हैं वो सारे का सारा किसी और का हो जाए तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे टुकड़े करके चिलकवों को खिला रहा है और हमें दिखा भी रहा है कि देखो कैसा लगता है। उसने आलियान के पास जाने की कोई कोशिश नहीं की थी, ना अपनी गलती की माफ़ी मांगने की। वो उसे अपनी सूरत ही नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे फिर से तकलीफ हो। उसने एक खत लिखकर साइक को दे दिया था कि वो उसके पास पाकिस्तान जाने के बाद आलियान को दे दे। खत में उसने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी थी और कुछ नहीं। उन्हीं खज़ा रसीदा दिनों में उसका सामना पॉल से हुआ। उसका अंदाज ऐसा था कि वो खास उससे मिलने आया हो। इससे पहले भी उससे सामना होता रहा था, लेकिन वो रास्ता बदल लेती थी। मैं अब तुमसे माजरत करने के काबिल हो सका हूँ, उसने मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में कहा। उसके पहले ही जुमले पर अमरा हैरान रह गई। वो उसके सामने खड़ा था। मुझे हकीकतन अब अफसोस हुआ है कि मेरा रद्द अमल किस कदर गलत था। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा, बदले में तुमने आला जरफी का मुजाहिरा किया। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहरहाल मुझसे बेहतर इंसान हो। अमरा, मुझे ये जल्दी मालूम हो गया था वो पैगामात तुम मुझे पोस्ट करती रही हो। अमरा ज़रा सा चौंकी। उस वाक़े के बाद अमरा उसे पैगामात पोस्ट करती रही थी। वो हफ्ते में 2 बार ऐसा करती। वो बाकायदगी से लेटर उसे टाइप करके भेजती रही। शुरू के पैगामात छोड़कर मैंने बाद में आने वालों का ज़रा तवज्जो से पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर मैंने उन पर सोचना शुरू कर दिया और फिर मैं उनसे मुतासिर होने लगा। उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि आम समझ बूझ वाले इंसान को अच्छी न लगे। चंद माह पहले मैंने मज़ाहिब पर कुछ किताबें लेकर पढ़ी और मुझे मालूम हुआ कि उनमें से एक किताब में वो लिखा था जो तुम मुझे लिख लिख कर पोस्ट करती रही थी। मैं तुम्हें कुरान की आयतें लिख कर भेजती रही थी। मालूम हो क्या है मुझे, तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मैं मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। क्या तुम मुझे बुरा इंसान समझना छोड़ सकती हो अमरा? अमरा मुस्कुरा दी। कुछ देर और बातें करके जब पॉल चला गया तो अमरा को लगा जैसे वो किसी इम्तिहान में पास हो गई है। चलो, उसके हाथ कोई तो कामयाबी आई। उस वाक़ये ने उसके अंदर ये एहसास पैदा किया कि अकल और सूझबूझ से किए गए अमल बेकार नहीं जाते। अकल करिश्मा साज है और ये मौतों की रुत की सवार है। साइकिल पर जाया करो ना यूनी, तुम तो साइकिल को भूल ही गई। साधना रात को उसके पास बैठी बातें कर रही थी। दिल नहीं चाहता साइकिल चलाने को, वो पढ़ रही थी। तुम्हारा तो अब जबान हिलाने को भी दिल नहीं चाहता। साधना ने उसे हंसाना चाहा। मेरी जबान ने बहुत कमालात दिखाए हैं ना, इसलिए। उसने हंसकर कहा, लेकिन बात मजाक नहीं थी। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो इंसान ना हो, अगर गलतियां ही होती रहें तो भी वो इंसान ना हो। उसने सर उठाकर कहा। उसके अंदाज पर साधना खामोश हो गई और कुछ देर ठहर कर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी से अस्पताल आ गई। कार का मामूली से एक्सीडेंट हुआ था एक अमीरजादे की कार के साथ, और कार ने सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर ऐसे हंगामा किया जैसे उसकी सारी हड्डियों का ढांचा चूर चूर हो चुका हो। वो खुद को उस अमीरजादे के खर्च पर प्राइवेट अस्पताल तक ले आया था और मजे कर रहा था। वैसे उसे चलने में थोड़ा बहुत मसला था।
अमरहा 2 दिन बाद उसके पास जाने का फैसला कर सकी और काउंटर पर उसके बारे में पूछा तो काउंटर पर मौजूद 2 लड़कियों ने उसे जरा घूर कर देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगी। तुम दोस्त हो उसकी? एक ने मुंह बनाकर पूछा। अमरहा ने सर हिला दिया। ठीक है, वैसे ज्यादा देर तक अस्पताल में रहना ठीक नहीं होता। कितना अच्छा हो अगर वो तुम सबके साथ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले। 2 दिन बहुत ज्यादा दिन होते हैं हॉस्पिटल में कयाम के लिए। जिसने मुंह बनाया था उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। अमरहा उसकी बात समझ ना सकी। इसका मतलब है कि तुम अपने दोस्त से कहो कि वो जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए, ये उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। दूसरी ने जरा मुस्कुराकर कहा, और दूसरों की सेहत के लिए भी। पहली का मुंह फिर से बन गया। अमरहा कार के कमरे की तरफ बढ़ गई और अपनी पुश्त पर पहली की आवाज़ सुनी। पता नहीं डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे इसे। जब अस्पताल का स्टाफ अस्पताल के कमरों में शिफ्ट हो जाएगा तब। दूसरी फौरन बोली। अमरहा उसके कमरे में आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका ख्याल था आलियान अपनी जॉब पर होगा। वो सामने ही बेड के एक तरफ बनी खिड़की की चौखट में बैठा नोट पैड पर कुछ बना रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सबने सर उठाकर उसकी सिम देखा। आलियान ने भी। वो जिन परों पर उड़कर आया था वो पर उसने वहीं जला दिए। वो वहीं खड़ी रह गई और फैसला न कर सकी कि अंदर जाए या बाहर निकल आए। अमरहा आ जाओ, पहले ये बताओ खाली हाथ तो नहीं आई हो ना? कार्ल बेड से उछल कर खड़ा हुआ और लिपक कर उसके करीब आया। साई और शावेज मिलकर दीवार पर एक पोस्टर लगा रखे थे जिस पर लिखा था जल्दी ठीक हो जाओ, और वो जल्दी कभी ना आए। पोस्टर पर लातदार दस्तखत मौजूद थे जो यकीनन हॉलमेट्स और यूनी फेलोज ने किए थे। शावेज और साई ने भी उसे देख लिया था और खैर मकदमी अंदाज से मुस्कुरा दिए थे। लाओ, अब ये चॉकलेट्स मुझे दे दो। उसने हाथ बढ़ाकर उससे चॉकलेट का डब्बा तकरीबन छीन ही लिया और उन्हें बेड के साइड पर रखे एक बॉक्स में डालकर उससे लॉक कर दिया और छोटी सी चाबी मुंह में दबा ली। अमरहा के तासुरात से वो समझ गया कि वो उसे बीमार नहीं समझ रही और वो अपनी लाई चॉकलेट्स वापस ही ना मांग ले। उसने करहाना शुरू कर दिया और अपनी जख्मी कोहनी और पैर आगे करके दिखाया। नहीं नहीं, मैं बीमार हूँ, ये देखो। आलियान ने ऐसे जाहिर किया जैसे कमरे में कोई आया ही नहीं और वह पेंसिल के साथ नोट पैड में मसरूफ रहा। मैं 2 दिन तकलीफ से तड़पता रहा और तुम अब आ रही हो अमरहा। अमरहा, जाते जाते अस्पताल स्टाफ की खबरगिरी भी करती जाना। उनका भी यही कहना है कि वो 2 दिन से तकलीफ में तड़पते रहे। शावेज ने कहा, तुम कब तक रहोगे यहाँ? अमरहा ने पूछा। जब तक ठीक नहीं हो जाता। लेकिन तुम तो मुझे ठीक ही लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ ना, उसने आंख मार कर कहा। थोड़ी देर बैठकर अमरहा उठाई। साई अमरहा के साथ बाहर तक आया और उसे हमदर्दी से देखने लगा जो कमरे से बाहर तक अजीब हालत में चलती आई थी। तुम बैठे ही नहीं, आ जाओ वापस चलते हैं। कार्ल इतने मज़े मज़े के लतीफ़े सुना रहा था नर्सिस के बारे में, और तुम्हें पता है अस्पताल के रूम से भी खाने पीने की चीज़ें गायब होना शुरू हो गई हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि नर्सिस भी ऐसे चिल्ला सकती हैं। मेरे सामने एक ने चिल्ला चिल्ला कर अस्पताल सर पर उठा लिया। उसकी कलाई पर जो कीड़ा चिपका था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बेचारी उसे एक इंजेक्शन लगाने आई थी रात को। कौन था जो अपने अपने रूम से निकलकर उस नर्स को देखने नहीं आया था? साई ने उसे हंसाने के लिए सब कहा था और उसका दिल रखने का वो हंस दी और चली आई। और अंदर आलियान कार्ल का लंगड़ा स्केच बना चुका था और उसके जख्मी हाथ में एक कदर चॉकलेट का डब्बा भी थमा दिया था। और कार्ल की आंखें, कोई देखता तो आलियान से पूछता, ये कौन सा कार्ल है जिसकी आंखें इतनी स्याह हैं, इतनी स्याह कि उनमें झांक कर मशरिक की सारी रमज़ें बूझी जा सकती हैं, सारे किस्से कहानियाँ पढ़ी जा सकती हैं, और जो इतनी महफूज हैं कि उनमें उतर कर सारे दरवाजे बंद करके कैद हो जाने को जी चाहता है। ऐसी पनाह गाहें जो ज़मीन को मैसर नहीं,
ان کے مالک ہونے کا اعتراض صرف ایک انسان ہی پا سکتا ہے، ایسا انسان جس کے ساتھ لفظ محبت جڑا ہو۔ آلیان کی پینسل آنکھوں کی پتلیوں کو اور سیاہ کر رکھی تھی اور وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ فریشر میں سے ایک لڑکی ایما کے ساتھ کار کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ لڑکی کو کار کو پرپوز کرنا پڑا اور کار نے یہ اعزاز حاصل کر ہی لیا کہ کوئی اسے بھی پرپوز کر سکتا ہے۔ لڑکی کا تعلق لندن سے تھا اور وہ کسی ہال میں رہنے کے بجائے ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہی تھی، یعنی وہ اتنی امیر تھی۔ یونیفیلس کو کار کی قسمت پر رشک آیا اور لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا، پھر انہیں یونیفیلس کو لڑکی کی قسمت پر رشک آیا اور کار کی قسمت پر افسوس بھی نہ ہوا۔ کار نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک عام انسان بن کر رہے، لیکن صرف ایک دن وہ عام انسان بنے رہنے سے چوک گیا۔ ایما کی برتھ ڈے پارٹی پر جس میں لندن سے آیا اس کا خاندان بھی شریک تھا، اس نے کچھ ایسے پرینک کر ڈالے کہ سب دنگ رہ گئے کہ پرینک اور دہشت گردی میں کوئی تمیز نہیں کیا۔ ان میں سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک صرف اتنا سا تھا کہ اس نے سر کارپیٹ پر نظر نہ آنے والی ڈوری کی بارودی سرنگ بجا دی جس سے پیر نہیں الجھتے، پھر اس نے ڈوری کے سرے کو آگ دکھا دی اور وہ ڈوری کسی چھلاوے کی طرح سانپ بنی پھلجری کی طرح کارپیٹ پر رقص کرنے لگی۔ مہمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں، ہر طرف اس پھلجڑی کا جال بچھا بھڑک جاتا۔ یہ سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک تھا، باقی کے معمولی اور غیر اہم پرینک بقول مہمان خدا کی پناہ۔ بس اتنی سی بات تھی اور ایما نے اس کے منہ پر انگوٹھی دے ماری کہ وہ ایک دیوانہ انسان ہے۔ انگوٹھی سائن نے کیچ کی اور الفاظ آلیان نے یاد کر کے باقی کے ہال میٹس کو سنائے۔ شاہویز نے نیلا گاؤن پہن کر ایما بن کر سانے کی ہو بہو نقل اتار کر دکھائی اور ہال میں ایما برتھ ڈے پارٹی کے عنوان سے ڈرامہ تھیٹر کیا گیا، جس نے تھیٹر ڈراموں کی تاریخ کو بدل ڈالا اور سب کامیڈی ڈراموں کا باپ ڈرامہ ہونے کا خطاب حاصل کیا۔ ایما تو پاگل تھی، کار تو صرف اس کی برتھ ڈے پارٹی کو یادگار بنا رہا تھا۔ یادگار ویرا کے لیے وہ یادگار لمحہ تھا۔ ان سب کے مشترکہ دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی تھی جس میں ان دونوں نے گانا گایا تھا۔ اس نے آلیان کو روسی گیت کی مشق کروائی تھی اور وہاں موجود سب لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سے بہترین گانا انہوں نے پہلے نہیں سنا۔ پھر ویرا جب اکیلی گٹار پر گانا گانے لگی تو دور کونے میں کھڑے ہو کر آلیان اسے دیکھنے لگا۔ اس کا آنکھ پانی کی طرح جھلمل کر رہا تھا، بند اور مٹ رہا تھا، ٹھہر نہیں رہا تھا۔ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، اس نے خود سے کہا، خود کو یاد دلایا۔ اس کی صورت بند اور بگڑ رہی تھی جو اچھی بات نہیں تھی۔ اس نے ویرا کے پاپا سے کئی بار بات کی تھی، وہ اس سے اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھتے اور اس سے بات کر کے بہت خوش ہوتے۔ ماما مہر ہفتے میں 2 بار اس سے مل کر جاتی اور وہ کسی ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں ڈنر کر لیتے، فلم دیکھنے چلے جاتے۔ پہلے ماما مہر نے اسے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ ولید کے آدمی اس تک نہ پہنچ جائیں، اب اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ ولید کے آدمی اب بھی اس کے پاس اسے مختلف بہانوں سے منانے آئے تھے اور وہ ان سے بہت اچھی طرح نپٹتا تھا۔ اور ایک بار وہ سیکرٹ روم بھی گیا، وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ اس نے ایسے ہی دیواروں کو دیکھا، اس کی نظروں نے کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ امرہ کی لکھائی پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور اس نے نظریں پھیر بھی لیں۔ تو پھر وہ وہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے کاغذ پر چند سطریں لکھی، ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی۔ وہ کاغذ کو گھورتا رہا، کیا اسے یہ لکھنا تھا؟ ہاں، پر یہی کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے دل کی وسعت کہاں کھو گئی ہے۔ میں ظالم ہوں یا مظلوم؟ میں اچھا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے؟ دوسرے کاغذ پر لکھ کر اس نے دیوار کے ساتھ چپکا دیا اور مانچسٹر کی حدود سے دور نکل گیا۔ شام نے اپنا پیراہن رات کے حوالے کیا۔ رات 3 بجے کے قریب وہ ایک دم سے اٹھی اور بستر ایسے چھوڑا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کوٹ اور جوتے اس نے کیسے پہنے اسے معلوم نہیں ہوا اور وہ کمرے سے باہر بھاگی اور بیرونی دروازے کو پار کیا جو ان لاک تھا اور تیزی سے شرٹ کی طرف بڑھی۔
और अपनी साइकिल निकाली। अभी वो उस पर बैठ कर उसे उड़ाती कि साधना की आवाज़ उसके पीछे से आई। अमरहा, कहाँ जा रही हो? वो पसीना पसीना हो चुकी थी और सांसें काबू में नहीं आ रही थी। उसने साधना की तरफ देखा, फिर खुद को और साइकिल को। एंजलम हॉल में आग लगी है। आंसू अल्फाज से पहले निकले। तुम्हें किसने बताया? मुझे। अब वो चौंकी और याद करने लगी। हाँ, किसने बताया? साई ने या कार्ल ने? वो खामोश साधना को देखती रही, फिर साइकिल को वापस रखा, अपने गाल रगड़े और घर के अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने ख्वाब देखा था या कुछ और था? उसने हॉल में आग लगी देखी थी। साधना के सामने वो शर्मिंदा सी हो गई। बताओ अमरहा, तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, मेरा वहम था शायद। साधना बहुत देर तक उसे देखती रही। अमरहा, हाल में वाकई आग लगी थी। अभी 10 मिनट पहले वीरा मुझे बताकर उस तरफ गई है। सब ठीक है वहाँ। साधना ने उसका गाल छूकर कहा। तो वीरा जा चुकी है। वो वापस अपने कमरे में पलट आई और उन दुआओं को दोहराने लगी जो ताउम्र उसे आलियान के लिए दोहराते रहना थी। फिर उसने साई को फ़ोन किया और हाल अहवाल पूछा। वहाँ सब ठीक था। हादसाती आग थी जिस पर काबू पा लिया गया था। अमरहा ने फ़ोन बंद कर दिया तो साई आलियान के पास आया। किसी ने अमरहा को आग के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उससे मालूम हो गया। अगर फ़ोन पर तुम उसकी आवाज़ सुन लेते तो कांप जाते। आलियान, तुम उसे खुद से अलग ही रखो, लेकिन उसे नापसंद ना करो। आलियान की आंखों की पुतलियां झलमला गईं और वो साई के पास से उठाया। गुस्सा, अना, दुख, पछतावा, बेरहमी, वो उन सब का मलगूबा बन गया था। वो आज जो बन गया था, ऐसा बनने का उसने पहले कभी नहीं सोचा था। हॉट रॉक में एक रात उसकी नज़र ऐसी लड़की पर ठहर गई जिसने सुर्ख रंग की फ्रॉक पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। वो डांस फ्लोर पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई और भी उसके साथ नाच रहा है। किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है, कोई उसे बाहों में थाम कर घुमा रहा है। आसपास वालों ने उससे पहले लड़की का एक मजाक समझा, फिर उसकी संजीदगी और कमाल फन देखकर उन्होंने मजाक का पहलू तर्क कर दिया। डांस फ्लोर पर बाकी सब रुककर पीछे हो गए और वो अकेली वैसे ही महवे रक्स रही। उसका महबूब उसके साथ महवे रक्स है। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर कमाल मासूमियत। लड़की के अंदाज में ऐसी बेखुदी थी कि गुमान होता था कि वो किसी न नजर आने वाले वजूद के साथ मौजूद है। सब उसे बहुत फुर्सत के साथ देख रहे थे और कोई ये नहीं चाहता था कि वो रक्स रोक दे। कुछ देर गुजरी, उसने आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि वो क्या करती रही है, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुई, बल्कि वो मुस्कुराई। जैसे मुलाकातें महबूब तमाम हुई बखुशी और वो डांस फ्लोर से हट गई। वहाँ मौजूद एक शख्स उसकी कैफियत को समझने का दावा कर सकता था। वो शख्स आलियान था। कुछ दिन पहले वो कैफे के स्टोर में आया था और स्टोर में आकर बाहर जाना भूल गया था। वो फर्श पर बैठ गया और कितना ही वक्त गुजार दिया। वो तब चौंका जब उसका फ़ोन बजा। वीरा ने उसे कुछ नोट्स के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था। वीरा की आवाज़ उसे वापस ले आई और वो उससे खौफ नहीं हुआ। वीरा से ज़्यादा समझदार लड़की उसने अब तक नहीं देखी थी। उसका दिल बहुत बड़ा था। वो बहुत जल्द बुरा नहीं मानती थी। उसकी बातें सुनने में मज़ा आता था। उसके साथ चलते अजनबियत का एहसास नहीं होता था। वो दिल दुखाने वालों में से हरगिज़ नहीं थी। उसने एक बार उससे बादाम केक बनाकर खिलाया था और वो बेचारी खामोशी से खा गई थी। बचे हुए आखिरी टुकड़े को खाने पर आलियान को मालूम हुआ कि उसने इससे बदमज़ा केक सारी ज़िंदगी नहीं बनाया होगा और अमरहा ने बादाम केक बनाना सीख लिया था। उसने वो केक साधना के लिए बनाया था, उसकी सालगिरह के लिए। साधना उसका इतना ख्याल रखती थी कि उससे भी कुछ उसके लिए करना चाहिए था। वीना ने अखबार के दफ्तर बाकायदा जॉब कर ली थी और वो काफ़ी मसरूफ़ रहने लगी थी। अमरहा का ख्याल था वीरा एक बहुत अच्छी सहाफ़ी बन सकती है। वीरा उसे अपने ऑफिस में लेकर गई थी और वक्त निकाल कर वो उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर मैनचेस्टर घुमाती रहती थी और एक बार वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चहलकदमी करने लगी।
امرہ کا دل افسوس سے بھر گیا۔ سائی ٹھیک کہتا تھا، سب اس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ ویرا کو بتا دے کہ آلیان اس کے لیے کیا ہے تو ویرا شاید بہت آرام سے آلیان کو پہچاننے سے انکار ہی کر دے۔ آلیان کے باپ کی آمد سے ویرا واقف ہو چکی تھی، لیکن اس سے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امرہ نے وہ سب کیا تھا۔ اس سے بہت اوپر کی عام سی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ سادھنا، کال، سائی، لیڈی مہر، کسی نے دوبارہ کسی کے سامنے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آلیان امریکہ گیا تھا تو ویرا کو ہی معلوم تھا کہ وہ ماما مہر کو لے کر شارلٹ کے گھر گیا تھا۔ آلیان اور ولید البشر کی ملاقات کیسی رہی اس نے کبھی معلوم کرنا نہیں چاہا تھا۔ لیڈی مہر نے بس اسے اتنا کہہ دیا تھا کہ آلیان سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ویرا سے بہت کم ملاقات ہو پاتی تھی اس کی۔ رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی اور یونی میں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ جا نہیں سکتی تھی۔ ویرا کی اسٹڈی ٹف تھی تو اسے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ امرہ نے پہلی بار کے تجربے کے بعد وقت سے پہلے اپنی اسائنمنٹ بنانا سیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور کام ہی کیا تھا۔ یونی میں اس کے بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے دوست اسے ڈھونڈتے اس کے پاس آتے کہ وہ کہاں گم ہے، نظر کیوں نہیں آتی، اور اس کے ایشین فلیگ نے لہرانا کیوں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے سائیکل کسی کو آج کل گرا کیوں نہیں رہی، اور اب ریس کب ہوگی کال کے ساتھ، بلکہ اب تو فٹ بال میچ ہونا چاہیے۔ کال کے ساتھ اس کی سائیکل ریس اتنی مقبول ہوئی تھی جیسے اس نے ورلڈ سائیکلسٹ کا میڈل جیت لیا ہو۔ بہت بڑی تعداد آئی تھی اسٹوڈنٹس کی ریس دیکھنے، وہ سب امرہ کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ اتنی اہم تھی امرہ ان کے لیے، اور اب بھی وہ اسے اپنی پارٹیز میں بلانا نہیں بھولتے تھے۔ دائم نے نوال کی برتھ ڈے پارٹی پر اسے بلایا، لیکن وہ بار بار کے اصرار پر بھی نہیں گئی۔ اخبارات میں ویرا کے آرٹیکل دھڑا دھڑ آ رہے تھے۔ وہ ان آرٹیکلز کو پڑھتی اور ان کے تراشے کاٹ کر اس نے ایک فائل بنانی شروع کر دی۔ اسے یہ سب پاکستان اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ اب حقیقت میں وہ ویرا کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتی تھی، ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں نہیں ملی تھی۔ اس نے کال کو چھڑا لگوایا کہ امرہ ہر حال میں جیت جائے۔ ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی خاص تھی۔ وہ فہرست بناتی تو تھک جاتی جو کچھ ویرا نے اس کے لیے کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ روس لے جانا چاہتی تھی، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اور امرہ واقعی میں اب اس کی مٹی میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ اختتام وقت کا ہو یا کسی عمل کا، کتنا بھی خوشگوار ہو، دکھی کر جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا دل پر آری چلا جاتا ہے۔ سب ختم ہو رہا تھا، سب۔ فارغ وقت میں وہ البم بناتی رہتی، کال، ویرا، سائی اور آلیان کی مختلف تصویریں کاٹ کر چپکاتی رہتی، ساتھ ان کی کئی باتیں لکھتی جاتی۔ ایما برتھ ڈے پارٹی کی جتنی تصویریں یونی میں پھیلی تھیں وہ سب اس نے حاصل کر لی تھی۔ ہال میں ہونے والے ایما برتھ ڈے پارٹی ڈرامہ کی تصویریں بھی اسے مل گئی تھی، جس میں آلیان ایما کا باپ بنا تھا، سائی ایما کی ماں اور شاہویز ایما، اور وہ سب کار پر قہر بن کر برس رہے تھے، اور باقی ہال میٹس ہنس ہنس کر مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اس نے اس البم میں اپنا سارا جہاں سمیٹ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستی اور روتی رہتی۔ وہ ان سب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والے تھے۔ لیڈی مہر کو کہانیاں سنانا بھی اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اسے آخر کار خود سے کہانی بنانا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کی پسند کی شادی کرنے والوں کے قصے کہانی بنا کر سنا دیے، جسے بہت پسند کیا گیا۔ عین البتہ درمیان میں بہت سوال پوچھتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں ماموں کو کیوں مسئلہ ہے، یا فلاں تایا جی یا دادی جی یا ابا جی کو، اور آخر پھوپھو جی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے کیوں نہیں کر دیتی، اسی ایک لڑکے سے کیوں، اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی، اور آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے ہمارے لیے مر گئے۔
नशिस्तगाह में आतिशदान के पास वीरा के अलावा वो सब होते। क्रिसमस आने वाली थी तो वो लेडी महर के बच्चों और उन बच्चों के लिए तोहफे पे पैक करते जाते। एक पहाड़ तक तोहफे का जो उन्हें पैक करना था। वो और साधना मिलकर उन तोहफे की खरीदारी भी करते जो लेडी महर को बहुत पसंद आए। आलियान जॉब पर जाने से पहले गोल दायरे की सूरत साइकिल चलाता ही जाता, खुद को चक्रों में ले लेता। उसे ऐसा करते देखकर चक्कर आने लगते, लेकिन वो बाज ना आता। कार्ल और वो एक साथ वापस आते और किसी न किसी हॉलमेट के कमरे में घुस जाते, पिज़्ज़ा मंगवाते, फिल्म देखते और क्लास में अपनी आंखें बामुश्किल खोलते पाए जाते। और ऐसे ही वो ऊँग रहे होते कि शाहवेज ने दोनों के नाक के नथनों में 2 अदद पेंसिलें अरस दी और तस्वीर खींचकर दी टैब मैनचेस्टर में भिजवा दी। अमरा ने वो तस्वीर देखी तो वे इख्तियार हंस दी और तस्वीर को महफूज कर लिया। दूसरी तरफ आलियान ने खूब जमकर खरीदारी की छुट्टियों में टूर पर जाने से पहले तुम कितना बदल गए हो, कितनी फजूल चीज़ें उठा लाए हो। साई ने उसकी खरीदारी देखकर कहा, हाँ, ताकि अगली बार अगर वलीद मुझे देखे तो उसे जी नहीं लगना चाहिए कि मैं बिक सकता हूँ, क्योंकि शायद मैंने हद से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है। चैरिटी के लिए फजूल खर्ची नहीं करते थे, नेकी करते थे। सिर्फ एक इंसान को दिखाने के लिए फजूल खरीदारी कर रहे हो, नेकी ज़ाया कर रहे हो। साई ने तासुब से कहा। नई खरीदी गई शर्ट्स को अपने साथ लगा कर देखते आलियान के हाथ रुक गए। मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, वलीदुल बशर जैसा, संजीदगी से वो पूछ रहा था। उसके सवाल पर साई सहम कर उसे देखने लगा। तुम क्या क्या सोचने लगे हो आलियान? उसने नरमी से कहा। कार्ल आया, सारी खरीदारी को देखा, 2 शर्ट्स उठाई, एक जोड़ा जूते, एक हुड और अपने कमरे की तरफ ये कहते भाग गया, क्रिसमस का गिफ्ट मैं अलग से लूँगा। क्रिसमस की छुट्टियों से चंद दिन पहले फुटबॉल मैच की धूम मची और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से उससे मुतल्लिक खबरें सुनी गईं। फ्रेशर और आलियान, कार्ल की 2 टीमों के दरमियान मैच था। आपस में उन्होंने इनामी रकम भी तय की थी। कार्ल अमरा के पास आया। हमारा मैच है, टीम का हिस्सा बनना है तुम्हें। मुझे खेलना आता है ना, मुझे इसमें दिलचस्पी है। तुम्हें सिर्फ भागना है। बर्फ पर भाग तो लोगी ना, वरना गिरती रहना। गोल करने की ज़रूरत नहीं, ना ही डिफेंस। तुम बहुत एंजॉय करोगी अमरा। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझे फ़ौरन हाँ कह देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल। वो अपने डिपार्टमेंट की दीवार के साथ पुश टिका कर खड़ी थी। देखने आओगी? वो उसके सामने खड़ा था। नहीं, वो बिला वजह किताब का कोना मरोड़ने लगी। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी दोस्त रहे हैं। याद है सब, और ये भी कि वो सब कभी था। मैं तुम्हें बर्फ में दबाना चाहता हूँ। मुझ में बर्फ में दबने की अब ताकत नहीं रही। तुम मुझे ज़मीन में दफना सकते हो। आखिर यूनिवर्सिटी की हर लड़की मुझसे दूर क्यों भागती है? आखिर तुम हर लड़की को दूर क्यों भगा देते हो? इतना अच्छा तो हूँ मैं। उसने मुंह लटका लिया, फिर एकदम हंसकर बोला, अब तो आओगी ना? अमरा ने नाम में सर हिला दिया। तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया, लेकिन मेरी तरफ से माजरत। तुम एक उलझा सवाल लगने लगी हो, बिल्कुल आलियान की तरह। चिढ़ के कहकर वो आगे बढ़ गया। आलियान, उसने उस नाम की सरगोशी की ऐसे जैसे कोई जुर्म कर रही हो। कार्ल को जाते देखकर उसका दिल चाहा कि उसके पीछे जाए, वजनी फाइल उसके सर पर दे मारे और कहे, हाँ बड़ी, मैं ज़रूर खेलूंगी, हम फ्रेशर को हरा देंगे। लेकिन वो ये ना कर सकी। वीरा ने भी उसे मनाना चाहा मैच के लिए, लेकिन उसने तरीके से उसे मना कर दिया। एन गई थी और अपने मोबाइल से उसे मैच दिखा रही थी। उस मैच की धूम मची थी। वो बर्फ पर भाग रहे थे, गिर रहे थे, लड़ रहे थे। एमा भी फ्रेशर की टीम का हिस्सा थी और कार्ल ने इतनी बार उसे बर्फ पर गिराया कि बेचारी के मुंह से खून निकलने लगा और वो फर्स्ट हाफ से पहले ही मैच छोड़ के चली गई। 3 गोल आलियान ने किए थे और वो बर्फ पर ऐसे भागता रहा जैसे जमीन को रोन डालना चाहता हो, और फुटबॉल को उसने ऐसे पैरों के निशाने पर रख रख कर उछाला जैसे संगबारी करके किसी को मार डालना चाहता हो। आलियान कार्ल की टीम जीत गई। उस रात उसे
फिर नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ा। उसे आलियान, वीरा, कार के पुरजोश नारे रात भर सुनाई देते रहे। वो अपने दिल के मकाम को मसलती रही। नींद की गोलियां भी नींद आने में नाकाम हो गई तो वो उठकर बैठ गई अपने बिस्तर पर और गहरे गहरे सांस लेने लगी और मैच की रिकॉर्डिंग निकाल कर आलियान को बर्फ पर गिरते, उड़ते, फुटबॉल की तरफ लपकते देखने लगी। और उसने ये भी जान लिया कि उसे अब सिर्फ पढ़ने से ही सरोकार नहीं रहा। एक आलियान में कितने ही नए इंसान घुस आए हैं। और फिर क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गईं और सब जानने लगे। मैनचेस्टर राजहंसों से खाली होने लगा। हमारे साथ चलो अमरा, साहिल ने उसकी मिन्नत की। मुझे नहीं जाना, दादा ने मना किया है। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, फिर सच ये है कि मुझे नहीं जाना, उसने बेतासुर अंदाज में कहा, जिसे देखकर साहिल अफसरदा सा होकर खामोशी से चला गया। वीरा ने भी उसे साथ चलने के लिए कहा कि उन 6 लोगों का ग्रुप जा रहा है, वो भी चले, लेकिन उसने बहुत आम से अंदाज में पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल दिया। फिर तो ये मौका नहीं मिलेगा ना अमरा, एक साथ होने का शायद ये आखिरी चांस है, उसने वीरा को मुस्कुरा कर दिखा दिया। लेकिन साथ फिर भी नहीं गई। आलियान, कार, साई, वीरा, शाहवेज और उनका कोई दूसरा मुश्तरका दोस्त मिलकर जा रहे थे। लेडी मेहर ने साई को बुलाकर हदायत दी थी कि हर वक्त आलियान के साथ साथ ही रहना है। उसे इन सब के जाने का इंतजार था। उसे एक अहम काम करना था जिसका मौका फिर कभी नहीं मिलना था। और जब वो सब चले गए तो वो यूं ही आ गई। बर्फ जुदाई की पैगंबर है, ये बहार के दरमियान हाइल है। आसमान से यही पैगंबर नाजिल हो रहा है। किसी दिल गिरफ्ता परी की फराग दीदा उंगलियों से निकलते बर्फ के साथ इसकी मानिंद धुंध अपनी दिलरुबाई के किस्से बयान करने से ज्यादा फराकिया किस्सों पर रोने पर माइल थी। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी की सड़क पर आई, धुंध ने दर्द बीना की तरह उससे लिपट जाना जरूरी समझा। वो बिजनेस डिपार्टमेंट नहीं जा सकी। वो उसकी बैरूनी दीवारों के पास जाकर खड़ी हो गई और उन दीवारों पर अपने हाथ रख दिए जिनके साथ वो लग कर खड़ा हुआ करता था। उसने सारी दीवारें छू डाली और वो उन दरख्तों के पास आ गई जिनके करीब वो खड़े हुए थे। उस हिस्से में जहाँ कभी वो बैठे थे, उन कोनों में जहाँ बैठकर वो किताब पढ़ा करता था और कॉफी पीता था। वो नजरों से उन जगहों की नजरें उतार रही थी। अब उसे डर नहीं था कि कोई उससे देख लेगा, इसलिए उसने अपने गीले गाल साफ नहीं किए। जब से उसने उसे थप्पड़ मारा था, उसने उसे फासला रख कर भी नहीं देखा था, उससे बात नहीं की थी। अस्पताल में वो सर झुकाए बैठी रही थी। ये सब उस अहद का हिस्सा था जो उसने खुद से किया था कि वो उसे और तकलीफ नहीं देगी। लेकिन अपने लिए वो और तकलीफ इकट्ठी करने यहाँ उसके तस्वुरात से लिपटने आ गई थी। सफ़ेद मैनचेस्टर में खून आलूद यादें अपनी बुनियादों से उठ खड़ी हुई और जिंदगी ने उसके अश्कों पर तरस खाकर पीछे की तरफ अपनी सवारी मोड़ ली। तानसेन ने चरागाह करने के लिए दीपक राग की चौकड़ी जमाई। सफ़ेद धुंध में जुगनू टिमटिमाने लगे और आसमानी मरगुलों को चाक करता आलियान उसकी तरफ बढ़ने लगा। दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से। लेकिन अब उसे उससे भागने की ज़रूरत नहीं रही थी। वो तो चाहती थी वो उसकी तरफ आए, और वो आ रहा था। जो हकीकत में वाक़या ना हो सके, वो करीब की चाह वाक़या करवा लेती है। वो एड़ी के बल घूम गई और उसने हर तरफ से उसे अपनी तरफ आने दिया। उसे उस ख्वाब में सराब होने पर कोई इतराज़ ना हुआ। आलियान, उसने सरगोशी को झटका और आवाज़ को बुलंद हो जाने दिया। वो यूनी मेहराब के पास थी। उस मेहराब के साथ वो कमर टिका कर उसका इंतज़ार किया करता था। उसने उस मकाम पर अपने गाल रख दिए और दोनों हाथों से उस जगह को थाम लिया। बेइख्तियारी बेखुदी की हमजोली है, और ये दोनों हमजोलियाँ मोहब्बत की सफ़ों में अव्वल हैं। उसकी बेइख्तियारी ने उसकी खुशबू को जा लिया और बेखुदी उस खुशबू में झूमने लगी। एक बच्चा अपनी माँ को नज़म सुनाता हुआ फुटपाथ से उसके पास से गुजरा। उसने अपनी हालत में फिर भी तब्दीली नहीं की। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया।
अरवा से मुबर्रा हस्तियों ने जाना कि मोहब्बत की इबादत की जा रही है। फिर वो उसी के अंदाज में कमर को टिकाकर एक टांग को तेजी करके खड़ी हो गई। जिंदगी की सवारी ने उन सब यादों को उसके पास उतारना शुरू कर दिया जो मुतल्लिकुल अनान बनी उसकी ज़ात पर हुक्मरानी करने पर नाज़ा थी। तुम्हें बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए, तुम्हें थकन उतारने की मशक करनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से एक एक मंजर को बार बार दोहराती रही। लाहौर खाली हो चुका है, उसके पास सब नहीं रहा, तुम तो यहाँ हो। अमरहा, देखो मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। वो कलाबाजियाँ लगा रहा था। मेहराब के साथ टिकी खड़ी अमरहा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा। वो हाथ सीने पर बांध कर खड़ा हो गया। जाओ कर लाओ, अमरहा उसे जवाब दे रही थी। उनके हाथ में बोर्ड्स होंगे, ज़रूर होने चाहिए। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। सारी ड्रैगन परेड मेहराब के सामने सजी खड़ी थी और उसमें वो मुस्कुराती हुई खड़ी थी। एक बार तुम भी तैयार रखना, उसने उसके गाल को छूकर कहा। वो तो मैंने कब से तैयार कर लिया, कहकर वो परेड में भाग गई और वो उसका नाम लेते हुए उसके पीछे भागने लगा और पीछे से उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। मुझसे शादी करोगी अमरहा? दोनों आमने सामने खड़े थे। सारी परेड उनके गिर्द इकट्ठी होने लगी। सारा हजूम उन दो के गिर्द समेट आया। चीनी साख्ता ड्रमों की कितारें सजा दी गईं और सुर्ख लिबास पहने लड़कों ने ड्रमस्टिक को हवा में बुलंद कर लिया। हाँ, उसने वो मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजा ली जो ताउम्र नहीं सजने वाली थी शायद। सुर्ख लिबास वालों ने अपने उठे हाथों को ड्रमों पर बेकाबू हो जाने दिया। रंग फैल गए, खुशबू बिखर गई, चिराग जल उठे, दिन सज गया। बाहर निकल आई एक अमरहा और एक आलियान के गिर्द सारी परेड दायरे में चकराने लगी। तो उनकी बहार का माखिज वो थी। हाँ, इस बार उनकी बहार का माखिज वो थी, मशरकी सुंदरी और अरब का सुल्तान। अमरहा ने हाथ फैलाए और कुछ बर्फ उसमें इकट्ठी की और उसमें मिटते बनते होयलों की तरह उछाल दी जो वहाँ नहीं था और सिर्फ वहाँ ही तो था। तुम इतनी देर से आए आलियान? उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया और वो खड़ा हो गया। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? उसकी ठोड़ी को छूकर उसने शरारत से पूछा। क्या ना करती? होंठ का कोना दांत में दबाकर उसने कहा, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। देखो आलियान, तुम्हारा मैनचेस्टर बर्फ में डूब रहा है। उसने सफेद मैनचेस्टर की तरफ हाथ किया। देखूं जरा मेरे मैनचेस्टर को कौन देख रहा है? उसने दो उंगलियों से उसकी नाक पकड़ ली। मुझे अमरहा कहते हैं, कौन नहीं। अपनी नाक छुड़वा कर उसने उसकी नाक मरोड़ कर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए बर्फ इकट्ठी कर दूं अमरहा? उसने उसके मुंह के सामने आकर पूछा। उन दोनों की आंखों ने तवील सफर तय किया जिसके कभी ना खत्म होने की दुआएं की जाती हैं। बर्फ क्यों? ताकि तुम उससे अपनी पसंद का घर बना लो। बल्कि आओ चलो यहाँ बैठ कर घर बनाते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे बर्फ के ढेर के पास ले जाने लगा। नहीं आलियान, तुम यहाँ मेरे पास खड़े रहो, कहीं मत जाओ, वादा करो कहीं नहीं जाओगे। उसकी आवाज में सारा बचा खुचा दर्द सिमट आया। दोनों एक साथ जुड़े मेहराब में दुबके थे। उनके सर एक दूसरे से मस हो रहे थे और दाएं हाथों की हथेलियां अपनी लकीरों समेत एक दूसरे में मदगम हुई थी। नहीं जाऊंगा, उसने उसके गाल पर फूंक मारी और अरब की रेत ने उड़कर मुंह की पेशानी का बोसा लिया। सिया चोगे में लिपेटे आंसू से भीगे चेहरे को उसने जमीन पर सजदे के लिए तैयार किया। वो मोहम्मद बख्श के लिए खुदा से उसकी सारी रहमतें मांगने वाली थी और फिर वो खुद को खुदा के हवाले कर देने वाली थी। आमना एक दरवेश सिर्फ औरत उस मर्द से दस्तबरदार होने जा रही थी जिससे वो वाबस्ता हुई थी। उसने आंखें बंद की और उन आंखों के पर्दे पर मोहम्मद बख्श को पाया। उसने आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। आलियान ने अमरहा की, अगर मैं बर्फ होती तो तुम्हारे कदमों पर गिरती, तुम बर्फ होती तो मैं भी बर्फ होता। मुझे वही होना है जो तुम्हें होना है अमरहा।
اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے گالوں پر رکھ کر کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یارم یارم، وہ گنگنانے لگے۔ مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم و امرا۔ ناک پھر اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیسا راز؟ یہی کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی امرا ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ جڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی، اور پھر اسے آنکھیں کھول دینی پڑی اور ان کی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا پڑا۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے کئی پہر بیت چکے تھے، پھر بھی وہ وہاں تاعمر کھڑی رہنے پر بضد تھی، اور یادوں کے ریور پر ہنٹر مارے گئے اور وہ لاپتہ ہونے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زندگی اپنی سواریاں لیے آگے دوڑ گئی۔ دادا نے اس کی محنت کی کہ وہ بھی کہیں گھومنے کے لیے چلی جائے، اور خود کو مانچسٹر کے طلسم سے دور لے جانے کی ایک کوشش اس نے بھی کر دیکھی، اور سامان باندھ کر رین کے پیچھے فرانس چلی گئی۔ اس کے ساتھ گھومنے کی کوشش میں مصروف رہی اور نئے سال کے آغاز پر ایفل ٹاور سے جنم لیتے جشن کو غیر دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اسے وہاں موجود مجمع کے وہاں موجود ہونے کی قطعاً سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی اس بات کی کہ وہاں اتنا شور ہنگامہ کیوں تھا، اور ساری دنیا کی آتش بازی جو ایفل کے جسم سے پھوٹ رہی تھی وہ کسے اور کیوں اچھی لگ رہی ہے۔ ایک دوسرے کو کندھوں پر اٹھائے وہ کیوں ناچ رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا جو اتنا اچھا تھا کہ وہ سب اپنی نظریں ہٹانے کے لیے تیار تھے، نہ مسکراہٹ کے لیے۔ امرا نے بے بسی سے اپنی ہتھیلیاں مس لی۔ یہ سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ مبہوت کر دینے کو کوئی منظر تیار نہ ہوا، دیوانہ بنا ڈالنے پر کوئی عالم قادر نہ رہا۔ بے مثال عجائبات اپنی مثال کھونے لگے۔ فراقی جان نے سب مانند کر ڈالا تھا۔ آلیان نے میڈرڈ کے آسمان پر بنتے مرتے آتشی رنگوں کے جلووں پر نظریں گاڑنی چاہی، اور وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ اس پر تھکن سی سوار ہو گئی، جبکہ ابھی تو رات شروع ہوئی تھی۔ اس کے آگے کھڑے کارل، ویرا اور سائی اچھل کود کر رہے تھے، اور وہ بے بسی سے کھنڈر سا ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ سب سے نظریں بچا کر اس نے کہیں دور نکل جانا چاہا۔ کہاں جا رہے ہو آلیان؟ ویرا نے پوچھا۔ میں کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا۔ اس نے جھوٹ بولا اور تیزی سے ہجوم میں خود کو گم کر لیا کہ ویرا اسے لپک کر آ نہ لے۔ وہ چلتا رہا اور میڈرڈ کے ایک گمنام سے چھوٹے سے قہوہ خانے میں بیٹھ گیا۔ وہ کافی کی کتنی پیالیاں پی چکا تھا، وہ گنتی بھول چکا تھا۔ اس نے اپنا سر لکڑی کی میز پر رکھا تھا اور نظریں گلی میں ساز بجاتے اس نوجوان پر ٹکا دی تھی جس کے سامنے کئی بچے اور بوڑھے ناچ رہے تھے۔ اتنے بھدے ساز اور آواز پر یہ سب کیسے ناچ سکتے ہیں، اور آخر وہ کیا وجہ ہے جو انہیں ایسے ناچنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ ساز کا تار ٹوٹا اور اسے ایک تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ اچھا تو ساز اس لیے رکا اور تار یوں ٹوٹا۔ اس نے میز پر پڑے اپنے سر کا رخ بدل لیا، اور اس بار اس کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے لیمپ پوسٹ پر جا ٹھہری جو کبھی روشن ہوتا ہوگا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔